कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की मदद करें। पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से हमने इनखला कर दिया, वीजा दे रहे हैं, हमारी एम्बेसी काम कर रही है। We believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan. For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down to make you pay. افغانستان کے اندر اس وقت ان خلا سے بڑا مسئلہ خلا ہے۔ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے، سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو۔ آج پاکستان کے مشورے کے اوپر عمل کریں، کل صورتحال بہتر ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ افغانستان کی صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے۔ 15 اگست کے بعد جو واقعات ہوئے وہ ہم سمجھتے تھے کہ اب امن آ جائے گا، لیکن پھر جو دھماکے ہو گئے، 200 کے قریب انسان لقمہ اجل بن گئے، اور ابھی بھی وارننگ ہے کہ مزید دھماکے بھی ہو سکتے ہیں۔ سارا زور اس وقت انخلا پر ہو رہا ہے کہ اتنے بندے نکل گئے، اتنے جہاز آ گئے، اتنے جہاز بندے لے کر چلے گئے۔ جو انسان وہاں رہ رہے ہیں، 3.5-4 کروڑ افغان شہری، بچے، خواتین، ان کا کیا ہو رہا ہے؟ حکومت تو نہیں ہے وہاں پر، جو وہاں حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، تو کیا وہاں پانی مل رہا ہے؟ کیا دودھ بچوں کے لیے اویلیبل ہے؟ کیا روٹی اتنی وافر مقدار میں ہے؟ سبزیاں، دالیں، چاول، گوشت، جو بھی ان کا کھانا ہے وہ مل رہا ہے؟ اس کی طرف ہمیں نہیں پتا۔ یہاں بیٹھ کر پاکستان بھی آنا شروع ہو گئے لوگ۔ آج صبح بھی ایک جہاز پہنچا غیر ملکی یہاں پر آئے، اور یہاں سنا ہے کہ 21 دن وہ جتنے آ رہے ہیں وہ قیام کریں گے۔ کچھ بارڈر پر بھی لوگ موجود ہیں، افغانی ہیں جو نکلنا چاہ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی انسانی المیہ تو پھر جنم نہیں لے رہا، وہ چاہے بارڈر کے اس پار ہو، بارڈر کے اس پار ہو، یا کسی بارڈر کے آر پار ہو، ہیں تو انسان نا، بہن بھائی ہیں نا، ان کا کیا ہو رہا ہے؟ تو آج کا یہ پروگرام ہم نے اس حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں ہم انہی سے بات کریں گے، جو افغانستان میں گئے ہوئے ہیں، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ گلیاں اور کوچے ان کو کیسے لگ رہے ہیں۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی وائس آف امریکہ کی ریجنل ہیڈ عائشہ تنظیم صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب آزاد سید صاحب نے، جیو ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں، کابل میں موجود ہیں اور دھماکے انہوں نے دیکھے بھی ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ شکریہ آزاد سید، آپ نے وقت نکالا۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں انڈس ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتی ہیں، آپ نے ان کو طالبان کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھا۔ بہت شکریہ سمیرہ، آپ نے وقت دیا۔ سمیرہ، میں آپ ہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ وہاں پر IMF چلا گیا، ورلڈ بینک چلا گیا، انٹرنیشنل NGOs چلے گئے، جو لوگ انسانی مدد کے لیے کام کر رہے تھے، سب انخلا پر زور دے رہے ہیں، لیکن وہاں جو انسان بچ رہے ہیں، جن کے باہر جانے پر اب پابندی ہے، ان کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ وہ کھا پی رہے ہیں، کیسے کھا پی رہے ہیں، کدھر سے لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ شوکت صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آج آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں۔ آج صبح ہی اس حوالے سے میں نے مجبوراً ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر میں نے امریکی عہدیداران، اس میں یونائٹڈ نیشنز کے عہدیداران، جوناما کے لوگ، اور میں نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنی میس ٹیگنگ کی ہوگی اپنی ٹویٹ میں، کیونکہ ضرورت یہ محسوس کی جا رہی ہے افغانستان میں کہ ہر چیز جو ہے وہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس وقت تمام کی تمام ویسٹرن میڈیا کی رپورٹنگ جو ہے وہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ارد گرد گھومتی ہے، مگر وہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو بہت تیزی سے اپنا جبڑا کھولے افغانستان کی جانب بڑھ رہا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو کہ افغانستان میں 4تھے درجے پر آتے ہیں۔ پہلے درجے پر وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے ایلیٹ لوگ ہیں، وہ آلریڈی جا چکے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں، مگر وہ اپنی فیملیز بھیج چکے ہیں اور ان کے یہاں پہ اسٹیبلشڈ ان کے سٹیکس ہیں۔
تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہاں موجود تو ہے مگر وہ جانا نہیں چاہتا، لیکن ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس سٹیکس آف اماؤنٹ ہے۔ چوتھے درجے کے اوپر شوکت صاحب وہ لوگ ہیں جو اس وقت آئی ڈی پیز کی شکل میں یا ڈسپلیس لوگوں کی شکل میں پارکوں میں ہیں، یا دور دراز گاؤں دیہاتوں میں ہیں، یا کابل ہی کے آؤٹ اسکرٹس میں ہیں۔ آپ کارتے مامورین میں جائیں، وہاں ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی، وہ گو کے کیمرہ پہ نہیں بات کرنا چاہتے تھے فور ریزن، مگر بات کی ہے کہ ہم پہلے بہت خوف زدہ تھے، لیکن ان 10-12 دنوں میں کم از کم جو شہر کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے، اب اس طرف سے تو تسلی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا جو راشن سے بھری ہوئی دکانیں خالی ہو رہی ہیں، اس کے لیے یہ ری انفورسمنٹ کہاں سے آئے گی؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی جو بارڈر کراسنگز کھلی ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اس میں زرنج کا نام ٹاپ آف دا لسٹ لیا جاتا ہے ایران کی طرف سے۔ ایران نے جو فیول سپلائیز ہیں وہ ریزیوم کر دی ہیں طالبان کی ریکویسٹ پہ۔ پاکستان کے ساتھ ان کی دونوں ٹریڈ کراسنگز کھلی ہیں، اسپن بولدک چمن کی اور ننگرہار اور تورخم کی، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جہاں پر میں اس وقت ٹھہری ہوں، کہنے کو یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، مگر ابھی اس کی مینجمنٹ بھی ابھی اپنے تمام تر سپلائیز کو چیک کر رہی ہے کہ وہ کتنے دن کے لیے یہاں جو ڈپلومیٹس ہیں، یہاں فورن نیشنلز ہیں، فورن جرنلسٹ ہیں، آج ہم نے پوچھا ان سے کہ کیا ایسی صورتحال ہے، تو یقیناً وہ پہلی مرتبہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ پریشانی نظر آ رہی ہے، ادھر رکیے گا، پریشانی نظر آ رہی ہے۔ آزاد سید صاحب، آپ تو گھومتے پھرتے بھی ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں آپ کے چینل پہ، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ 3.5-4 کروڑ انسان افغانستان میں بستے ہیں۔ پہلے بھی وہ ڈیپینڈ کرتے تھے، پاکستان سے گندم جاتی ہے، آٹا جاتا ہے، سبزیاں جاتی ہیں، فروٹس جاتے ہیں، لیکن اب آپ کو ان تمام دنوں میں وہاں کی گلیاں، وہاں کے کوچے، وہاں کا کریا کیسا لگ رہا ہے؟ زندگی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ شوکت پرائز صاحب، سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ واحد آدمی ہیں پورے ٹی وی چینلز میں جنہوں نے اس ہیومن کرائسس کو سبجیکٹ بنایا ہے۔ سب سے اہم جو بڑا چیلنج ہے وہ ہیومن کرائسس ہے، اور اس کی ایگزامپلز میں گراؤنڈ سے دینا چاہوں گا آپ کو۔ آج سے ٹھیک 20 دن پہلے پیٹرول کی قیمت تھی 30 افغانی، یعنی کہ 30 افغانی میں 1 لیٹر پیٹرول مل جاتا تھا۔ آج 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے 82 روپے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر 80 روپے ہے، دوسرے کے اوپر 81 ہے، 82 ہے، کہیں 85 بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیٹرول کی قیمت میں 100% سے زائد اضافہ ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو آٹے کا ایک 20 کلو کا جو تھیلا ہے، اس میں صرف 3 دنوں کے اندر 1500 افغانی اضافہ ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تیسری اور اہم بات، جو ان کی کرنسی جس تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، آج اتفاق سے میں نے پیسے کچھ کنورٹ کروائے۔ میں جو پچھلے اشرف غنی دور میں آیا تھا تو میں نے 1000 روپیہ دیا تھا پاکستانی، اس کے عوض مجھے 490 روپے 1000 کے عوض ملے تھے، یعنی کہ ان کی کرنسی اتنی سٹرونگ تھی کہ وہ ہمارے کرنسی، ہماری جو روپے کے مقابلے میں وہ 60% زیادہ سٹرونگ تھی، 160 کہنا چاہیے، تو 110% زیادہ سٹرونگ تھی۔ آج وہی کرنسی میں نے 1000 کے عوض 543 روپے ریسیو کیے ہیں، یعنی کہ جو بیلنس ہے آپ کرنسی کا ڈی ویلیو اور ڈالر، یہ تو پاکستانی روپے کے مقابلے میں ہے، جو ڈالر کے مقابلے میں جس سے ساری کام ہونا ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو سینکشنز لگی ہیں ان کے ان ٹرمز آف فریزنگ دیئر اکاؤنٹس، ان کے جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی بینکس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ عملی طور پہ کوئی بینک اپنا کاروبار ہی نہیں کر رہا، ظاہر ہے ڈالر نہیں آ رہا تو ڈالر سے ساری مارکیٹ چلتی ہے، تو مارکیٹ ہی نہیں چل رہی۔ مارکیٹ نہ چلنے کی وجہ سے میں مارکیٹ پہ آتا ہوں، ادھر رکیے، میں مارکیٹ پہ آتا ہوں، ادھر رکیے گا۔ عائشہ تنظیم صاحبہ، آپ تو وائس آف امریکہ کی ریجنل ہیڈ ہیں، آپ بھی افغانستان میں کابل میں ہم آپ کو دیکھتے رہے، کابل ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، باہر کے لوگوں کا انخلاء ہو رہا ہے، امریکہ بھی جا رہا ہے،
एनजीओज जा रहे हैं, जब सब लोग निकल जाएंगे, फोकस इनका सारा मैक्सिमम फोकस इन खला पे है, सब लोग निकल जाएंगे, तो जो कुछ अंदर है अफगानिस्तान में उसका क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या कहती हैं आप? पराचा साहब, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल में जितनी भी इंटरनेशनल एनजीओज और यूएन के जितने इदारे अफगानिस्तान में काम करते रहे हैं, जाहिर है वो तालिबान से बातचीत करते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ये सारी एनजीओज, यूएनएचसीआर है, दूसरे इदारे हैं, ये तालिबान के उन इलाकों में भी काम करते रहे जहां तालिबान का इन्फ्लुएंस था या बाद में तालिबान का कंट्रोल था। तो दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है कि तालिबान से बातचीत रखना, खास तौर पे ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, जो इस वक्त आधी से ज्यादा अफगानिस्तान की आबादी ऐसी है जिसको बहुत शदीद इंसानी इमदाद की जरूरत है। वहां पे ड्राउट या कहत चल रहा है जो है कई सालों से। सो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि तालिबान से बातचीत आलमी इदारे करें। चलें, अच्छी आपने बात कर दी कि कम से कम पहले से भी इंटरेक्शन रहा है और अब भी है, लेकिन अगर आधी से ज्यादा अफगान आबादी इस वक्त ड्राउट का शिकार है, उनको इमदाद की जरूरत है, तो इनखला के साथ साथ उधर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं नाज़रीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अफगानिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। आजाद सैयद साहब, पहले तालिबान के बारे में इंप्रेशन था वो सरेआम फांसियां देंगे, वो सरेआम कोड़े मारेंगे, वो शूट आउट का फौरन जो है एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया। ये फरमाइए कि क्या जब आप गली मोहल्ले में रोड पे सफर करते हैं, लोगों को देख के आपका क्या तासर बनता है? अभी उनमें खौफ है, खौफ दूर हो गया, क्या सोच रहे हैं लोग वहां? प्राचा साहब, जब 1996 में भी तालिबान आए थे तो याद रखिए उस वक्त भी तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया था। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो आपने कहा कि जो सख्त सजाएं मिलेंगी, तो बिल्कुल सख्त सजाएं इस दफा भी दी जाएंगी। मेरी जो तालिबान के तर्जुमान हैं उनसे मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये स्पेसिफिक सवाल पूछा कि क्या आप जो माजी की तरह जो सख्त सजाएं थी जिस पे बाज़ दुनिया को एतराज था वो देंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम शरई सजाएं देंगे, जो शरीयत में मौजूद है वो सजाएं बिल्कुल हम देंगे। इस तरह पहले दी जाती रही हैं, लेकिन इस दफा हम ये करेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन जो है सजा से पहले वो बड़ी थारो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि सजाओं में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, जो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है और जो केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्यादा हम प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि इंश्योर कर सकें कि किसी गलत आदमी को सजा नहीं मिली। तो सजाएं भी होंगी और जो तरीकाकार तालिबान का है बिल्कुल वो अपनाया जाएगा, लेकिन थारो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये तालिबान के तर्जुमान ने ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में दिया है। कैमरे को लोग क्या सोच रहे हैं? आम जो अफगानी हैं वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, जहाज पे नहीं बैठ सकते, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, इनके आने से वो क्या सोचते हैं? मैं दो तरह के यहाँ पर लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास आपको पता है वो मुल्क चलाती है। और वो लोग हैं जो अर्बन सोसाइटी के रहने वाले हैं। ये बैंकों में काम करते हैं, सरकारी इदारों में काम करते हैं, या पूरा जो सिस्टम है प्राइवेट या पब्लिक वो चलाते हैं। वो लोग तो बड़े सख्त परेशान हैं। वो लोग किसी भी सूरत चाहते हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं और वो किसी भी सूरत चाहते हैं कि वो यहां से निकल जाएं, वो किसी पड़ोसी मुल्क चले जाएं, वो किसी यूरोपियन मुल्क चले जाएं, वो अमेरिका चले जाएं, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खुद तालिबान के लिए। इधर रुकिए बहरहाल, इधर रुकिएगा, मैं जरा इसी डिस्कशन को आगे लेके चलता हूं। आयशा साहिबा, तालिबान के मैं बारे में बात कर रहा हूं कि अब वो कैसे होंगे। अब देखें, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली है, वो ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्विटर मैसेज भी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं।
फिर उनको पीआर करना भी आ गया है। वो ऐसे पैगामात देते हैं कि उन पर एतबार कायम हो, वो ऐसी बातें करते हैं कि लोग उनके बारे में अपना तासुर अच्छा रखें। लेजिटिमेसी की अहमियत भी मान गए। पिछली बार वो कहते थे कोई तस्लीम करे ना करे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब उनको पता है कि लेजिटिमेसी जो है वो भी जरूरी है आलमी सतह पे। क्या वो अपनी फंडामेंटल अप्रोच या आइडियोलॉजी को भी तब्दील कर रहे हैं, करेंगे? क्योंकि ये जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, आप भी वहां रही हैं, सड़कें बाजारें, आपको कैसा लगा ये? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो तालिबान आपको बता पाएंगे। लेकिन जहां तक आलमी लेजिटिमेसी का और उनके बदलने का ताल्लुक है, तो ये बात ठीक है कि पीआर वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि आज के काबुल में और आज के अफगानिस्तान में जो एक पैनिक फैला हुआ है, लोग जितने खौफनाक, जितने घबराए हुए हैं, जो एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर हमें नजर आते हैं कि लोग हजारों की तादाद में, बल्कि शायद लाख से ज्यादा की तादाद में मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोगों को मैं जानती हूं जो पढ़े लिखे हैं, जो खवातीन हैं, जो जर्नलिस्ट थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो सारे मुल्क से या निकल गए हैं या निकलने की कोशिश में हैं। तो ये सब तालिबान के अफगानिस्तान से ही फरार होने की एक कोशिश है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान कहते तो हैं कि वो बदल गए हैं, लेकिन 40 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है, 90 की दहाई की यादें हैं, और फिर पिछले 20 साल में जब जंग थी तो वो इलाके जो तालिबान के कंट्रोल में थे, वहां कोई इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत अच्छी तो नहीं थी। और ये तो आलमी इदारे भी रिपोर्ट करते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गए, दीगर इदारे। तो तालिबान को बहुत टाइम लगेगा और बहुत पेशेंस के साथ उनको, अगर वो अपनी ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं रेपुटेशन के वो बदल गए हैं और वो वाकई इंसानी हुकूक पर यकीन रखते हैं, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको बहुत पेशेंस से और वक्त लगाना पड़ेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये जो काबुल की सड़कों के लोग मनाजिर दिखा रहे हैं कि जी सड़कें नॉर्मल हैं, सड़कें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अच्छा। ये वो काबुल नहीं है जिसमें मैं फिरती रही हूँ, सड़कों पे फिरती रही हूँ। ये वो काबुल की सड़कें हैं जिसमें एक भी औरत आपको बुर्के के बगैर नजर नहीं आती, और बहुत कम औरतें नजर आती हैं, और जिसमें आपको नौजवान जो है जीन्स टी शर्ट में नजर नहीं आते। तो ये कहना कि जी हालात नॉर्मल हैं, हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हैं। और अगर तालिबान चाहते हैं कि लोग उन पर यकीन करें, भरोसा करें और उनको मुख्तलिफ समझें, तो इसके लिए उनको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सब्र, तहम्मुल और पेशेंस के जरिए साबित करना पड़ेगा। 40 साल की जो बेयकीनी और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या इवन 1-2 महीने में भी नहीं जाएगा। वेल सेड, वेल सेड। सुमैरा खान, अगर यही बात मैं आपकी तरफ लेके आऊं कि पहले तालिबान खवातीन को बाहर नहीं आने देते थे, अब वो चादर के साथ आ सकती हैं। पहले बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती थीं, अब उन्होंने कहा है कि बच्चियां स्कूल भी चली जाएं। तो तब्दीली आप जो कही जा रही है, जो बताई जा रही है, आप तो काबुल में मौजूद हैं, आप दिन भर देखती हैं, फिरती हैं, आपको वो तब्दीली बाजारों में, गलियों में, सड़कों पे नजर आती है? मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा इख्तिलाफ करूंगी आयशा से। आयशा जरूर एक मुख्तलिफ काबुल में फिरती रही होंगी, लेकिन जहां तक जीन्स टी शर्ट की बात है, अभी भी काबुल में जीन्स टी शर्ट में ही लोग फिरते हैं। मैं हूँ, अनस है या एजाज है, हम सड़कों पर जाते हैं। खवातीन की तादाद पहले बिल्कुल नहीं थी जब मैं काबुल आई हूँ, और इससे पहले की भी काबुल में मैं बेतहाशा मर्तबा आई हूँ। देखें, एक निजाम लपेटा गया है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और हर निजाम की अपने मुल्क में अपनी जगह है। आज अगर मैं उठकर चली जाऊं अमेरिका और मैं कहूं कि बंद करें ये सब कुछ और आप वो करें जो मैं चाहती हूँ, तो ये बहुत मुश्किल होगा। हम अपना नजरिया नहीं थोप सकते। यही चीज पाकिस्तान में अगर कोई आ जाए तालिबान, तो पाकिस्तानी लोग नहीं मानेंगे। तो सेइंग दैट कि वो मेरी और आयशा की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए, ये रियलिटी है। काबुल इस वक्त तालिबान के पास है, और क्यों है? अमेरिका उनको देकर गया है, किसी और ने नहीं दिया, और बाकायदा एक लेजिटिमेट मुआहिदा दस्तखत करके देकर गया है। उन्होंने किसी और फरीक को इसमें सानी नहीं बनाया। इस मुआहदे के बारे में, इस मुआहदे के बारे में देखें ना, इस मुआहदे के बारे में तालिबान ने एग्रीमेंट किया, लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, डॉक्टर अशरफ गनी वाली गवर्नमेंट या दीगर जो नॉन पश्तून लोग हैं, वो तो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं थे, इनको बाहर रखा गया।
अब ओवरऑल पॉपुलेशन या काबल के लोग जो जैसे आजाद कह रहे थे, आजाद सैयद साहब के अर्बन हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इस मुआहदे के बारे में कि ये मुआहदा करके अच्छा किया गया है, क्या किया? चूंकि आपका इंटरेक्शन रहता है लोगों से, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है शौकत साहब के लोग डरे हुए, सहमे हुए, खौफ खाए हुए थे। लेकिन मैं एक मर्तबा फिर वही बात करूंगी कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है जो कि यहाँ का एक सबसे बड़ा जिन लोगों के पास आसाइश थी, सहूलत थी, वो चले गए, कुछ मजीद जा रहे हैं और कुछ जाएंगे भी। इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता, मगर ये कहना शायद ज्यादा हो जाएगा कि सब बुरके में है। नहीं, यहाँ पे प्राइवेट चैनल्स में शमशाद टेलीविजन उस दिन गई थी, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी एंकर को उसी तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। और उनसे मैंने पूछा फजले फाजली साहब से जो हेड है उनके कि क्या आप पर कोई प्रेशर है तालिबान से? उन्होंने कहा नहीं, हम एड्स भी चला रहे हैं, उसमें वही मॉडर्न खवातीन है। उनके ऑफिस में बैठकर मैंने देखा। बात यह है शौकत साहब कि 20 साल की एक अलग नजरिया चला रहा है, 20 साल में एक अलग नस्ल पैदा हुई है। उसके ख्यालात को तालिबान के लिए तब्दील करना, इट्स नॉट एन ओवरनाइट एक्सरसाइज, आई मस्ट से दैट। लिहाजा तालिबान को भी वक्त लगेगा। और चले अच्छा है अगर फ्रीकैन एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अकोमोडेट करें। यही तो पाकिस्तान कह रहे हैं, यही पूरी दुनिया कह रही है कि इंक्लूसिवनेस की जो बात है वो यही है कि एक दूसरे को अकोमोडेट करें। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर अब होगा क्या। मसलन यहां भी लोग आना चाह रहे हैं, फॉरनर इनखला हो रहा है उनका, वो पाकिस्तान आ गए हैं, यहां कुछ दिन ठहरेंगे चले जाएंगे। महाजरीन के हवाले से बड़ा कहा जा रहा था, अभी तक तो कुछ नहीं है। आगे क्या होगा बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। आयशा साहिबा, प्रेसिडेंट बाइडन ने ऐलान किया कि जिन्होंने काबुल पे हमला किया है हम सजा देंगे, फिर ड्रोन मारे और बकौल अमेरिकन के वो मास्टरमाइंड भी मार दिया। कब तक ये मारते रहेंगे लोगों को इस तरह से? देखिए, हमने ये देखा है उसामा बिन लादेन 10 साल लगे अमेरिका को ढूंढने में। उसामा बिन लादेन को दुनिया भूल गई, किसी को पता भी नहीं था कि खामोशी से CIA और अमेरिकी इदारे उसामा बिन लादेन की तलाश में लगे हुए हैं। तो अमेरिकी हुकूमत ने एक बात तो ये साबित कर दी कि जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। अब कब तक ड्रोन चलेंगे ये तो जाहिर है कि अमेरिकी हुकूमत के ऊपर है, ना मैं जानती हूं ना आप जानते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक दाइश इस रीजन में है, जब तक अलकायदा इस रीजन में है, जब तक कोई भी और ऐसा ग्रुप इस रीजन में है जिसके बारे में अमेरिका को या यूरोपीय ममालिक को ये यकीन है कि वो उनके खिलाफ कोई मंसूबाबंदी कर सकता है, तो उस वक्त तक ये जो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी जिसका सदर बाइडन ने जिक्र किया, ये मौजूद रहेगी। और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इस वक्त जो सैटेलाइट के जरिए और सिग्नल्स इंटेलिजेंस, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत सारे अब ऐसे टूल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इस रीजन में दाइश कई सालों से मौजूद है। 2014 के इख्तिताम और 15 के शुरू में वो ऑफिशियली वजूद में आई और अब तक है, अब 2021 आ गया है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी हमें हो सकता है सालों जारी रहे। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं कि 2014-15 से दाइश आई और दाइश अमेरिका की फुल मिलिट्री के होते हुए दाइश खत्म नहीं हुई। आप कह रही हैं कि फिर भी चलता रहेगा। 30-31 के बाद, यानी 31 अगस्त के बाद तो अमेरिकन ट्रूप्स मुकम्मल चले जाएंगे। अफगानिस्तान विल बी एज सॉवरन अगेन एज लाइक एनी अदर कंट्री। फिर कैसे अमेरिकन वहां ड्रोन मारेंगे विदाउट परमिशन ऑफ अफगान गवर्नमेंट? पर अच्छा साहब, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर अफगानिस्तान की जो हुकूमत बनती है उसको दुनिया में लेजिटिमेसी कितनी मिलती है और कितने लोग उसको हुकूमत मानते हैं। क्योंकि अभी तक ये तालिबान को कहा गया है कि अगर ये एक इंक्लूसिव हुकूमत नहीं होगी जिसमें तमाम जो है अक़लियतों की, ख़वातीन की नुमाइंदगी हो, तो
तब तक दुनिया इसको तस्लीम नहीं करेगी। अभी तो अफगान हुकूमत के एसेट्स, जो उनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो भी फ्रोजन है, ज्यादातर अमरीकी बैंकों में है। तो हुकूमत बनेगी, उसको लेजिटिमेसी मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगी और अमेरिका उसको हुकूमत तस्लीम करेगा, तो तब ये अटैक एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट पे माना जाएगा। अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने माजी में ये देखा है कि जहां जहां अमेरिका ने समझा है कि जो मकामी हुकूमत है वो उससे ताउन नहीं कर रही, और बाज दफा मकामी हुकूमत को बिहाइंड क्लोज डोर्स बता के और कभी कभार ना बता के अमेरिका ने दूसरे मुल्कों में भी ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, यमन में की हैं, पाकिस्तान में की हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। चले इधर रुकिएगा। आजाद सैयद, 200 से जायद 200 के करीब लोग मारे गए इन धमाकों में और अभी भी वार्निंग है कि दोबारा भी धमाके हो सकते हैं। ये बताइए कितना चैलेंजिंग बनता है वहां के लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए जो प्योरली अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अदा करने के लिए आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। ये खौफ का आलम कैसे अफेक्ट करता है, कितना ज़हन में रहता है? भाई साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो यही खौफ है और यही प्रेशर है कि एक तरफ तो अलर्ट जारी हो रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें जारी कर रही हैं। आज पाकिस्तान ने भी एक अलर्ट जारी किया है अपने शहरियों के हवाले से, और हम जर्नलिस्ट को भी आगाह किया है कि यहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो अलर्ट जारी कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से अलर्ट आ रहा है, फ्रांस की तरफ से आ रहा है। फिर ग्राउंड के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें पर्टिकुलरली एयरपोर्ट के एरिया के ऊपर जाएं, आल्दो कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तालिबान का जो नया सिस्टम है उसके मुताबिक जो जर्नलिस्ट को रजिस्ट्रेशन करने का उन्होंने तरीका कार बताया, तो हम उन इब्तदाई लोगों में है फॉरेन जर्नलिस्ट के, मैं उन फॉरेन जर्नलिस्ट के इब्तदाई लोगों में हूं जिसमें BBC था, CNN था, न्यूयॉर्क टाइम्स था, और पाकिस्तान की तरफ से मुझे बुलाया गया था और एक हमारे और साथी हैं खैबर टीवी के, उनको बुलाया गया था। तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन उन्होंने दी, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन जाके वहां पर तालिबान को दिखाते हैं या जब जाके वहां पे फिल्म करने लगते हैं तो उनकी तरफ से भी एक चैलेंज है, वो रोकते हैं, मना करते हैं, और जाहिर है एक तल्ख समा भी पैदा होता है। आल्दो के उन्होंने हमारे साथ कोई जिसे कहते हैं हाथापाई नहीं की या कोई तशद्दुद नहीं किया, लेकिन बाज तशद्दुद के वाकयात भी रूनमा हुए हैं। ये किसकी तरफ से तशद्दुद, किसकी तरफ से हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ तशद्दुद नहीं हुआ, तालिबान के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि तालिबान जो सिक्योरिटी वहां पे फराहम कर रहे हैं वो मना करते हैं और सख्ती से मना करते हैं, और उनको बताया भी जाए कि भाई हम रजिस्टर्ड हैं, तो जो नीचे लेवल के ऊपर जो उनके लोग सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो अक्सर इस बात को मद्देनजर नहीं रखते कि हम रजिस्टर्ड या एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं। इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद, ये जो आप कहते हैं, थोड़ा सा हमें ये भी समझाएं, ये जो आप कहते हैं कि सिक्योरिटी पर मामूर हैं, वो कोई बाकायदा सिक्योरिटी ड्रेस है? इधर सोशल मीडिया पे तो शायद मजाक के लिए अजीब अजीब सी तस्वीरें चलती हैं कि ये कोई DSP है, ये कोई डिप्टी कमिश्नर है, ये कोई SP बैठा है, ये ट्रैफिक वार्डन है। कैसे आप पहचानते हैं कि ये वाकई ये तालिबान है, ये तालिबान ऑफिशियल हैं, ये उस नए आने वाले लोगों का हिस्सा हैं जिन्होंने अब टेक ओवर किया है काबुल पर? शौकत, हुआ ये कि जब 15 अगस्त को काबुल में तालिबान आए तो 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त की सुबह जब हुई तो कोई भी अपने सरकारी दफातरों में मौजूद नहीं था, दफातर में मौजूद नहीं था, पुलिस मौजूद नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं थी, जिन्होंने सारा शहर चलाना होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, ट्रैफिक को सबूत रखना होता है। उसकी वजह से नतीजा क्या निकला? नतीजा ये जगह जगह ट्रैफिक जैम होने लग पड़े। लॉ एंड ऑर्डर, अगर जनरल लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल खराब नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन लोग कंफ्यूज होते रहे और आज भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि देखिए हम किस तरह मान लें कि ये हर कोई तालिबान है, क्योंकि बाज लोग घरों से असला उठा के भी, जिसने दाढ़ी रखी हुई है वो आके कहता है मैं तालिबान हूं। जलालाबाद, तुरखम से लेकर यहाँ पर काबुल तक जगह जगह पे मैं रुकता रहा जब मैं आया था, तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन उस कंफ्यूजन का हल तालिबान ने ये निकाला कि अब जो इनकी मिलिट्री की वर्दी है वो कई जगहों पे तालिबान वो पहनते हैं, यानी कि जो अफगान नेशनल आर्मी। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है, कि
तालिबान ने कहा था कि जो फौज वाले हैं वो भी वापस आए ड्यूटी पे और जो सरकारी अफसरान हैं वो भी वापस आए, नॉर्मल तरीके से ऑफिसेज को रन करें। तो कुछ ऐसा आपने देखा है कि लोग वापस आए हों दफातर में, बैंक्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, गवर्नमेंट का काम चल रहा हो, या अभी कोई नहीं आया? नहीं, बिल्कुल आए हैं लोगों की जो छोटा तबका है, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, एहलकार हैं, वो बिल्कुल आए हैं बड़ी तादाद में। जो टॉप टियर है उनकी अक्सरियत दफातर में मौजूद नहीं है। मैं अगर इनके नेशनल बैंक से बात करना शुरू करूं, जो अफगानिस्तान का कौमी बैंक है, उसकी टॉप टियर बिल्कुल गायब है। इनकी पुलिस की बात करूं तो उनकी टॉप टियर बिल्कुल गायब है। अगर आप दूसरे इदारों की बात करें, इनकी एक वजारत है जो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो बिल्कुल उनकी टॉप टियर गायब है। इनकी वजारत हेल्थ की जो टॉप टियर है वो गायब है। इनकी वजारत तालीम उसकी जो टॉप टियर है वो गायब है। वजारतें जो चलें बहुत शुक्रिया आजाद सैयद, आपने वक्त दिया। सुमेरा खान बहुत शुक्रिया, आयशा तंजीम साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, कोशिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ है वो आपके सामने पेश किया जाए। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, असरात क्या होंगे, कोई आएगा कोई जाएगा। मेरी कोशिश थी कि वहां क्या खाने को मिल रहा है, क्या पीने को मिल रहा है, क्या रहने की जगह है, क्या खौफ में रह रहे हैं, या खौफ जो है अब वो दूर होता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।